پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مل کے نہ صرف بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے، بوائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم ہر میدان میں، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو چاہے وہ سینٹ الیکشنز ہو، ہم مل کے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اور اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے کہ ہم حکومت کو عوام کے جو دل کی آواز ہے، عوام کے جو مسائل ہیں ان سے واقف کریں اور ان کو ہر موقع پہ ہم لڑے۔ الحمدللہ جو یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سیاسی فیصلے ہوئے ہیں، ایک شارٹ ٹائم میں، اتنا کم ٹائم میں پورا حکومت کا جو پوزیشن ہے اس کو پورے ملک کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے۔ بائی الیکشنز آپ دیکھیں، ملک کے ہر کونے میں بائی الیکشنز ہوئے ہیں اور حکومت کو بری طرح شکست ملی ہے، ہارے ہیں۔ اور ڈاسکا کا جو بائی الیکشن ہے اس میں جس طریقے سے وہ وائلنس کو استعمال کر کے، ان کے پرانے ہتھ کنڈے کو استعمال کر کے دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی ایکسپوز ان کو کیے ہیں۔ اور پورے ملک میں یہ پیغام گیا ہے کہ پاکستان کی عوام حکومت کے ساتھ نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے۔ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے، میاں محمد شہباز شریف صاحب کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے، ہمارے سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو جمہوری سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے مل کے ایک یونائٹڈ کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد کے سینٹ سیٹ کا الیکشن میں ہمارا پی ڈی ایم کا جوائنٹ امیدوار بھی بنایا ہے۔ ہم نے کسی بھی میدان نہیں چھوڑا ہے۔ ہم نے نیشنل اسمبلی کا میدان کو، جہاں کم توجہ دیا جاتا تھا، اور ہمارا تنقید بھی یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی بالادستی ہو، ملک کے فیصلے پارلیمان میں ہوں، تو شکر الحمدللہ اس پی ڈی ایم کی فیصلہ کی وجہ سے ہم نے اب سے ہی وہ جنگ جیت لیا ہے، اور ہمارا کردار کی وجہ سے حکومت نے صحیح 3 سال بعد اب پتہ لگ گیا ہے ان کو کہ ان کے کوئی ایم این ایز بھی ہے، ان کا کوئی اتحادیوں بھی ہے، وہ ہر کسی کے پاس پہنچ رہے ہیں، شاہد ان کا عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش اب کر رہے ہیں، ان کے دکھ درد، ان کے مسئلے اب سننے کو تیار ہے۔ تو یہ جمہوریت کا خود بخود جمہوریت کی ایک پتہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کم ووٹس کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم جنگ میں ہمارا تعداد بظاہر نظر ایسے آتا ہے کہ کم ہے، لیکن کم تعداد سے ہم حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سینٹ الیکشنز جمہوریت کی جیت ہوگی، جمہوریت کے امیدواروں کی جیت ہوگی، اور یہ جمہوریت کا بحالی کا جو پاکستان کا چیپٹر ہے، ایک بار پھر وہ جمہوریت کا بحالی کا کہانی شروع ہو جائے گی یوسف رضا گیلانی کے سینٹ الیکشن کے جیت کے بعد۔ تو میں ایک بار پھر اپنے سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے قیادت کو، سارے جماعتوں کو شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنا جوائنٹ اسلام آباد کا کینڈیڈیٹ کا فیصلہ لے لیا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مل کے لڑ رہے ہیں۔ مارچ 3 کو الیکشن ڈے ہے، اور پھر مارچ کے آخر میں مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وہ جمہوریت کا سفر جس کے لیے ہم سب دن رات جدوجہد کر رہے ہیں، اس سفر کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں، حکومت کے ممبرز کو کہہ رہے ہیں، ان کا اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے ممبرز کو کہہ رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔
माफ साहब शुक्र बिलावल साहब ये फरमाइए का बिलावल साहब के हवाले से बिलावल साहब 1 by 1 प्लीज सेनेट की जो आप लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, सेनेट तक पहुँचे हैं, इसको ड्राइव नो डाउट पीपल्स पार्टी ने किया और बहुत सी खिलाफ भी आई, स्पीड ब्रेकर भी आए, लेकिन आप बड़े संभाल के यहाँ तक ले आए हैं। अब तमाम पीढ़ियाँ आपके साथ है। क्या आप समझते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि मार्च से पहले कोई तरीके अदम मार्च वाली भी चीज़ आएगी, और क्योंकि गिलानी साहब जो है इस वक्त हुकूमत मुश्किल में है उनके उम्मीदवार के वजह से? जहाँ तक PDM की बात है, हम सब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारी जो जमातें हैं, हम सब साथ हैं। आज से साथ नहीं है, सेनेट इलेक्शन से साथ नहीं है, सेनेट इलेक्शन से पहले से साथ है, सेनेट इलेक्शन के दौरान भी साथ है, और इंशाअल्लाह ताला सेनेट इलेक्शन के बाद भी हम साथ रहेंगे। आपने अदम एतमाद की बात पूछा है। अदम एतमाद तो अब हम उस फेज़ में नहीं हैं, और वो बात सेनेट इलेक्शन के बाद हम PDM के अंदर उसका स्ट्रैटेजी और हमारा लॉन्ग मार्च की स्ट्रैटेजी की बात हो सकता है। इस वक्त हम सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सिर्फ सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीद है कि सेनेट इलेक्शंस में हम अच्छा रिजल्ट कौम के सामने लेकर आए। बिलावल साहब ये फरमाइएगा, बिलावल साहब जो हैं बहुत ज्यादा और गिलानी साहब दोनों बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं, बड़ी जो है खुश दिखाई दे रहे हैं। जहांगीर खान तरीन के हवाले से मशहूर था कि उनका जहाज उड़ा करता था और मामला तब्दील हो जाया करते थे। क्या आप समझते हैं कि इस सब मरतबा भी जहांगीर खान तरीन का जहाज उड़ेगा या दरमियान में ही रहेगा? सर, हम तो जहाज के साथ और दूसरे तरीक़ेकार में शायद मुकाबला ना कर सके, लेकिन हम अपना किरदार पे मुकाबला कर सकते हैं। हम जमहूरी बुनियादों पे मुकाबला कर सकते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारा अब इस इलेक्शन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो हमारे वोटर्स है, वो मेंबरान असम्बली है, वो मेंबरान नेशनल असम्बली है, और हम सब के इंटरेस्ट में है कि जमहूरियत चले, पार्लियामान चले, पार्लियामान अपने लिए बेहतर फैसले ले, और पार्लियामान ही इस मुल्क के अवाम के मसाइल का हल निकाले। और अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे वोटर्स के सामने दो ऑप्शंस हैं, या वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार के साथ दे सकते हैं। हमारे उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी रह चुका है, और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, जब भी पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होती है, तो हम पार्लियामान का एहतराम करते हैं, मेंबर्स का भी एहतराम करते हैं, और अवाम के मसाइल पार्लियामान के ही थ्रू हल करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म होता था, वो अपोजिशन के मेंबर्स को भी, हुकूमत के मेंबर्स को भी, उनको हम उनके सवाल को जवाब देते थे, पार्लियामान में आके वहाँ बैठते थे, हर किसी को इज्जत देता था, हर किसी का आपसे बात करता था, और हर किसी का सुनता था। एक लीडर ऑफ द हाउस का काम होता है, because you are the leader of that entire house, not just your political party. तो अब उन मेंबर्स के सामने ये चॉइस है कि क्या आपको एक जमहूरी ऑप्शन चाहिए जो आपके अपनी बेहतरी के लिए, अपना हाउस की बेहतरी के लिए ये ऑप्शन है, या आपको PTIMF का जो उम्मीदवार हैं, जो हमने भी देखा है, इस हुकूमत ने भी देखा है, वो हमारे हुकूमत के दौर में मेंबर्स का फ़ोन का जवाब नहीं देता था, तो आज भी ऐसी सिलसिला हो रहा होगा। तो ये स्टार्क ऑप्शन है, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक स्टार्क ऑप्शन है कि आप चूज़ करें, आप टेक्नोक्रेट चाहते हो या जमहूरियत चाहते हो। और ये इम्तिहान है हमारे मेंबरान असम्बली के लिए कि क्या अब मुल्क के अवाम के एक्सपेक्टेशंस पे आप अपना वोट डालेंगे, या इमरान खान की खौफ की वजह से आप अपना वोट डालेंगे। एक मिनट आजम साहब ये बताइएगा कि आपकी कौमी असम्बली में शिफ्टें पूरी नहीं है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर आपको भी पता है कि आपके मेंबर पूरे नहीं हैं, इसके बावजूद भी आप इस प्रोसेस के थ्रू उनको जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी किसी
ज़माने में बुरा कहते थे, आप कहते थे कि आप गैर जमहूरी तरीके से इस गवर्नमेंट को नहीं गिराएंगे। इस तरह गिलानी साहब की जीत का मतलब है PTI हुकूमत का अपनी ही हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद है। तो आप भी तो उन्हीं प्रोसेस से जा रहे हैं। नहीं, मैं तो हमेशा जमहूरियत की बात करता हूँ, हमेशा पार्लियामान की बात करता हूँ, और जमहूरियत और पार्लियामान ही वो मैदान है जहाँ हम लड़ सकते हैं। और हमारा ये ख्याल है कि आप किसी मैदान को ना खुला छोड़े, तो हम ये फाइट उनको अपने असेंबली में एक सेनेट इलेक्शन का हम फाइट वो लेके जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर हुकूमत तब्दील हो जाए तो वो जमहूरी तरीके से ही हो। इमरान खान की ये रवायत रहा है, जो अब जहाज का बात हो रहा था, नैब को इस्तेमाल करके अपोजिशन को गिरा। अपोजिशन तो क्या, अपोजिशन के साथ तो इमरान खान ने नैब को इस्तेमाल किया है और वो डिक्टेटोरियल टैक्टिक्स पे इस्तेमाल किया है। उसने अपने मेंबर्स के खिलाफ और अपने इत्तेहादियों के खिलाफ भी यही रवायत अपनाया है, और थोड़ी देर के लिए इस किस्म का तरीक़ाकार चल सकता है, मगर आखिर हम सब जानते हो कि अगर इस मुल्क को चलना है, अगर इस मुल्क ने तरक्की करना है, तो हमने जमहूरी अंदाज में सब मिलके इस मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालना है। हमारा कहना ये है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कहना ये है कि जमहूरी तरीके से जमहूरी जमातों के साथ अवाम के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मसाइल हल कर सकते हैं। हमें अवाम की ख्वाहिशात पे चलना चाहिए, किसी के दूसरे के प्रेशर्स की वजह से, उनकी वजह से नहीं चलना चाहिए। तासुर है वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। एक तासुर ये भी है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना वजन जो है PDM से पकड़े में डाल दिया, इसी वजह से इमरान खान को मुस्तकिल शिकस्त आ रही है। आपको क्या लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? अगर आपके साथ है, अगर आपके साथ है तो फिर अमन जमहूरी तो नहीं होता। पहले दिन से, आज से नहीं, 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जिद्दोजहद रही है कि हम चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशंस इम्पार्शल रहे। हम चाहते हैं कि हर इदारा अपना अपना काम करे, और इसी में पाकिस्तान की तरक्की है, इसी में पाकिस्तान की मुस्तकबिल है कि हर इदारा अपना अपना काम और अपना अपना दायरा में रह के काम करे। और हम खुश होते हैं जब ऐसे चलता है, हम खुश होते हैं जब हर इदारा अपना काम करते हैं। हमने कभी नहीं, ना कल ना आज, किसी इदारा से गैर जमहूरी सपोर्ट मिला है। हमारा जो प्रेयर, जैसे अदालत में कहते हैं, आपका जो प्रेयर होता है वो ये है कि इदारे न्यूट्रल हो। और अगर सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आज तक बज़ाहिर आप कह रहे हो, दूसरे को ऐसे लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए, उसी अंदाज के साथ जैसे हम तनकीद करते हैं जब किरदार न्यूट्रल नहीं होता। आपको कहते हैं कि इदारों की जो पार्लियामेंट की जो राय है उसको मुकद्दम समझना चाहिए, उनको फैसला करने देना चाहिए। इसी बात को लेकर सेनेट का इलेक्शन जो है उसमें जो भी फैसला आता है, ऐसे ये बताएं क्या उसे आप कबूल करेंगे, और अगर आपकी हिमायत से फैसला नहीं आता तो क्या उस सूरत में उस हुकूमत को जो एक सियासी और सियासी बर्तरी मिलेगी, क्या आप हुकूमत के खिलाफ तहरीक लगी करेंगे? हम हुकूमत के ये नाजायज़, नालायक और नाअहल की हुकूमत के ख़िलाफ़ पहले दिन से अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम हर मैदान पे इस हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शंस हो, और चाहे वो पाकिस्तान के सरके हो, जुलूस हो, जलसे हो, लॉन्ग मार्च हो, रैली हो। और हम इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे जब तक हम अपना मकसद में कामयाब नहीं होते हैं, और इस नाजायज़ हुकूमत को घर बेच के एक अवामी हुकूमत मुंतखब करे जो अवाम के मसाइल हल कर सके। ये
और पीपल्स पार्टी मुखालफत करती है, तो ये इसकी कोई लॉजिक तो नहीं रहती, आपके पास कोई जवाब भी नहीं है, अब बैसाखी की मुरीद आपको कम है इस तरह। सर हमारा जो क्या जवाब नहीं है, हम तो आइन और कानून और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हम आज भी हम तो चाहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल हो, ये आपके लिए बेहतर होगा और पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का किसी भी किसी दूसरा इदारा गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से हम सब पे मुसलत की जाए, तो वो आइन के बरक्स होगा, जमहूरियत के तकाजे के अंदर नहीं होगा। कानून साजी का आप सीनियर सहाफ़ी है, आपको पता है कि अगर कानून में तब्दीली लेकर आना है या आइन में तब्दीली लेकर आना है, वो पार्लियामान ही वो जगह है जहां कानून साजी हो सकती है। हमारा उम्मीद है कि जैसे ही सेनेट इलेक्शंस ख़त्म होते हैं, हम ब्रॉडर इलेक्टरल रिफॉर्म्स पे कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि जब आपको आइन में तरमीम करनी हो तो आप आइन में तरमीम करने की कोशिश के लिए ना किसी पार्टी से राब्ता करते हैं, ना पार्लियामान का कमेटी प्रोसेस से दूसरे पार्टी के राय लेते हैं, ना आप पार्लियामान के थ्रू पास करवाने चाहते हैं। आप किसी चोर दरवाजों से अपना मर्जी पूरे मुल्क पे मुसलत करना चाहते हो। आप कभी इलेक्शन कमीशन के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हो, कभी आप सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हो। ऐसे हम उम्मीद रखते हैं कोई आपको एक हुकूमत को इजाजत नहीं देंगे। हम जानते हैं कि जैसे इलेक्शन